Hey everyone, Radhe Radhe. Firstly, sorry for lately posting the video on this channel. Actually, the exam stuff and everything, I was a bit occupied by all of those. Now, the video is specifically recorded for the purpose how I scored exemption in IBS. I recently cleared my CA final Group 2 in this attempt of May 26 with an exemption in IBS, and the the post which I made on LinkedIn, and everyone was asking your strategy, how you cleared, how you scored exemption in IBS, because at CA final level in Group 2 the subject which is disappointing the students is IBS. And so here is the strategy which I followed, what I did for IBS basically. Firstly, this was not my first attempt which I appeared for CA final. It was my subsequent attempts, or I would say the subsequent attempts. Then I scored only a score of 29 in January 26 in IBS, and the whole group 2 was remaining just because of that, because of IBS. Now, from that point, I realized that IBS needs a strategy change, because IBS was only disturbing my whole group 2. I cleared the DTIDT because I was very well provisioned through that, but IBS was making a difference. IBS was not letting me clear the entire group. So the strategy which I followed in this attempt, firstly, what I did for earlier attempts was I was not solving any mock test at my home. Now, solving mock test doesn't mean कि you just read through the mock test which ICA is releasing and you are just referring the solution that this I know and this I know. No, that is not mock test solving. The mock test solving is you are completely dedicating 4 hours to a paper and writing the answers in the frame which you will write in exam. So that is known as mock test, and basically we took the subject lightly कि हाँ open book है तो we'll just refer from the books and it will make the change, but it actually doesn't make any change for IBS. The first strategy change was I solved 1 to 2 mock tests in the month of April after my third revision. Then after completing the revision of all subjects for my second revision, I'll say what I did, I dedicatedly devoted 2 days for IBS. Yes, you have to reserve a slot for IBS if you want to score good. Matlab, I really increased my score after dedicating the days. Now in dedicating those days, what I did case study solving. I did index framing on those days. Plus, additionally, whenever I appeared for both the groups, so there comes a point where we feel frustrated कि I can't study anymore, or it's like I don't feel like studying. अब मुझसे नहीं हो रहा, मैं नहीं पढ़ पा रही उस दिन पे. So what I did at that is I just open the index which I have prepared, or any faculty index for IBS, and I start reading through that. Suppose I have dedicated 20 days to FR. Now in between those days I somewhere feel कि I don't want to study. Like कभी कभी होता है to the plans, for wasting that time to any other activity, or you can say taking the right use of that time, you can study the index, only index from there. Now comes, like, I have done the dedicated the days, I have also written the mock test. Now comes what you did before the 1.5 day of exam. So 1.5 day of exam, like it is an open book, so everybody feels कि कोई बात नहीं, open book है तो we'll just refer the book and we'll get the answers, but it is not really a case. आपको उस 1.5 day पे, since आप costing और law को इतना ज़्यादा अवेयर नहीं हो, आप लाइक वी हैव गिवन दिस फॉर्म एग्जाम्स, और उसमें हम लोग इतना ज़्यादा उसी एरिया पे फोकस नहीं करते हैं. तो यू हैव टू स्टडी दैट एरिया एट दैट टाइम, लाइक रिवीजन वीडियोज़ रेफर कर लो या कुछ भी, मतलब जो आप कर सकते हो. आपने खुद से पहले कहीं पढ़ा है तो यू कैन लाइक रेफर दी समरी बुक्स, आप उसका इंडेक्स देख सकते हो लॉ का, क्योंकि आप बाकी के, अगर आप दोनों ग्रुप्स दे रहे हो, इफ यू आर अपीयरिंग फॉर बोथ द ग्रुप्स, तो यू हैव स्टडीड फॉर रेस्ट ऑफ द 5 सब्जेक्ट्स. नाउ ओनली द थिंग रिमेनिंग इज IBS, और IBS के लिए आपको एडिशनली कुछ भी इतना ज़्यादा मतलब लोड नहीं लेना.
मेरा ऐसा था कि आई वॉज स्कोरिंग लेस इन MCQs, तो मैंने MCQ ज़्यादा सॉल्व किए। तो फर्स्टली एनालाइज कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हो, एंड आपकी राइटिंग स्पीड कम है तो आप उसको मैनेज करो। आप पेपर पूरा मतलब जितना आप कंप्लीट कर सकते हो मैक्सिमम यू हैव टू डू, क्योंकि IBS में दी मेन रीज़न ऑफ फेलिंग इज़ कि यू आर नॉट एबल टू कंप्लीट योर पेपर, योर केस स्टडीज़, and utilize the first 15 minutes in analyzing which case studies like descriptive part you know the must, मतलब जो आपको अच्छे से आता है आप उसको 4 केस स्टडीज़ को एनालाइज करो, आप उसी पे स्टिक रहो। मीनवाइल क्या होता है जब हम लोग व्हेन वी आर राइटिंग एग्जाम, तो ऐसा होता है कि वी आर नॉट गेटिंग एनी आंसर, तो वी जस्ट स्टार्ट कि हमने जो ऑप्शन में छोड़ा है केस स्टडी हम उस पर जाते हैं, बट दैट विल ओनली बी अ वेस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि आप उस केस स्टडी को ऑलरेडी चूज़ कर चुके हो, तो आप उसी पे डिवोटेड रहो। अगर कोई आंसर नहीं मिल रहा है तो उस पर पैनिक मत क्रिएट करो वहाँ पे, एंड मूव टू अनदर डिस्क्रिप्टिव, एंड यू विल राइट समथिंग एट लीस्ट फॉर दैट पोर्शन विच यू आर लेस कंफर्टेबल विद, और जो आपको नहीं मिल रहा है बिल्कुल भी। नाउ कम्स द थिंग कि हमारे पास बुक्स है तो वी कैन रेफर बुक्स, और कैसे, तो दी थिंग्स विच यू आर कंफर्टेबल विद, दी पोर्शन विच यू आर कंफर्टेबल विद, राइट इट बाय योर ओन। उसको बुक में मत सर्च करो, उसको जस्ट ऐसे कि मैं एकदम परफेक्ट लिखूंगा, मैं बुक की लैंग्वेज लिखनी है, नहीं वैसा मत करो, क्योंकि अगर आप यू विल डू दैट ना तो यू विल वेस्ट योर टाइम अ बिट, आप थोड़ा सा टाइम वहाँ पे उस चीज़ को ढूंढने में लगाओगे। तो इट्स बेटर कि अगर आपको वो चीज़ में आप कॉन्फिडेंट हो, आपने वो 5 सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, तो जस्ट डू इट बाय योर ओन एंड हैव दी फेथ ऑन योर सेल्फ कि हाँ मैंने करा है तो वो सही करा होगा। वो कैलकुलेशन मिस्टेक के लिए मतलब डोंट गो टू बुक एंड रेफर दैट प्रोविजन अगैन एंड अगैन। नाउ दी थिंग MCQs कब करने चाहिए, वट आई सजेस्ट MCQs साथ में ही करने चाहिए व्हेन यू आर रीडिंग अ केस स्टडी। फर्स्ट 15 मिनट्स में आपने एनालाइज कर लिया आपको कौन सी केस स्टडीज़ आती है, एंड दी वन केस स्टडी विच यू नो द बेस्ट, और उससे आप स्टार्ट करोगे। यू स्टार्ट विद दैट केस स्टडी, आप उससे उस 15 मिनट्स में स्टार्ट कर सकते हो। एंड उसके बाद में क्या करना है अपन को, MCQs ऐसे करना है कि सबसे पहले मैंने डिस्क्रिप्टिव देखे, उसके बाद में मैं क्या करूँगी, मेरी केस स्टडीज़ आइडेंटिफाइड है, ये 4 केस स्टडीज़ मुझे इस पेपर में अटेंड करनी है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, अब मेरे पास केस स्टडीज़ आइडेंटिफाइड है, सबसे पहले मैं MCQs ऊपर ऊपर से पढ़ लूँगी कि क्या MCQ क्या मांग रहे हैं मुझसे, वो पढ़ लूँगी मैं MCQs, और डिस्क्रिप्टिव मेरे ऑलरेडी देखे हुए हैं, राइट। अब मैं क्या करूँगी, मैं पूरी केस स्टडी देखूँगी, पूरी केस स्टडी में जहाँ मुझे वो चीज़ लग रही है मैं MCQ साथ साथ में करूँगी। मैनी पीपल रिकमेंड कि MCQs हमें सबसे लास्ट में करने चाहिए, बट आई डोंट फील डूइंग MCQs एट दी एंड, क्योंकि उसमें ना टाइम मैनेजमेंट में बहुत इशू आते हैं, और कोई MCQ हाँ ऐसा है जो नहीं मिल रहा है तो कीप इट फॉर लास्ट, उसको हम लास्ट में देखेंगे। कुछ नहीं मिला तो एटलीस्ट विल टिक एनी ऑप्शन, और अगर डिस्क्रिप्टिव छूट गया तो वो पूरा केस स्टडी छूटेगा, 10, 15, 20 जितने भी मार्क्स का वो है वो पूरा छूटेगा। MCQ अगर आप लास्ट का मोमेंट भी 1 मिनट भी बचा है ना तो यू कैन टिक एनी ऑप्शन, बहुत प्रोबेबल चांसेस हैं, लेस देन अ प्रोबेबली मैं बोलूँगी, वो सही हो सकता है ना। तो कीप इट फॉर द लास्ट, जो नहीं मिल रहे हैं, और जो मिल रहे हैं ना MCQ उनको साथ साथ में यू कैन डू।